Namaskar, welcome to Honest Astrologer, and in my series where I invite some clients to discuss their Mahadasha experiences. Today we have Gagandeep with us, and he's going to talk about Ketu Mahadasha. So Gagandeep, welcome to the channel. Thank you, sir. It's my honor to be on your channel. Of course, um, people take your blogs, your websites, your advices, your channel, and your astrology. Um, so much of detailed versions of your Mahadashas, the books that they read. I think in every way that you have touched people, especially the Ketu Mahadasha Yeah, yeah. people. So yes, so I'm here. Thank you so much for allowing me to speak about it. It's an honor. Thank you. So Gagandeep, first, before we start, give us your introduction. What is it that you do? You may want to avoid the personal details and just give us an overview. And then, where were you in your Shani period and your Mercury period? Just the gist of it. And then Okay. we'll have a detailed discussion around Ketu. Okay. Okay. Right. So to start with, I basically hail from Delhi, born and brought up in Delhi. And I was born in Shani Dasha, Mhm. Saturn Dasha uh, in Delhi, and did my schooling through it, within, and then Shani being in my fourth house. So a little bit of hiccup, during the board examinations, in when I chose science as my stream rather than commerce, in the 11th standard. So anyways, but that was one, thing that I really remember, that Shani gave me. It wasn't a great period for me, I would say, because again, we have a big family, as in we are a big family, four sisters, and I'm the youngest son, male child. you know वो जो पुश्तों से जैसे चलता आ रहा है वैसा वैसा कि जब तक टिपिकल. बेटा नहीं हो जाए बच्चे करते हाँ, या एग्जैक्टली. हैं। तो वो चीज थी, हुई. एंड बिकॉज नाउ अब थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में को आता है, थैंक्स टू केतु महादशा, केतु देव, राइट. राहु इज इन 11th, है ना. तो उसमें ना, लाल किताब में आई फिगर्ड आउट कि ग्रैंडफादर एंड फादर वो दोनों 20 साल की उम्र के पहले पहले चले जाएंगे, विच वॉज ट्रू इन माई नहीं, केस. इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ. राहु 11 से नहीं होता है। फोर्थ हाउस शनि हो तो फादर का इन्वॉल्वमेंट इंसान की एज में कम होता है। आई एम नॉट अ बिग ओके. लाल किताब फैन। हाँ, मी टू. मी टू. फोर्थ हाउस शनि इज अ डेट्रीमेंट टू द ओके. फादर्स इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ। अब फादर अच्छा. हो सकता है दूर रहे, फादर हो सकता है चले जाएं, वो उनके चार्ट पे डिपेंड करता है। प्लीज Okay. कंटिन्यू। Okay. Yeah. So I completed my schooling. I entered into my graduation as in college in Mercury Dasha. My Mercury Dasha started in 2022. And I then started, I actually opted for a distance learning because I think I think that time, computer was booming, information technology was new word, the buzzword, right? And no other, um, you know, college in Delhi, I think they were just introducing, they had computer science or something like that. Um, उसके साथ benefit ये हुआ कि I was able to utilize my skills while I was studying, and I was able to get into a job. So while I was studying, I started working as well. मरकरी स्टार्ट हो गया था, बट वही आई थिंक दशा संधि हो गई या कुछ तो होगा. उसके बाद फिर वो चलता रहा. माय करियर स्टार्टेड, एंड इन बिटवीन, आफ्टर 3 years of Mercury, yeah, my dad left, as in he was
he had a stroke, and then we were in the hospital for some time, and then he left. So it happened actually in Mercury में, I think केतु का अंतर्दशा चल रहा था उस टाइम पे, if I'm correct. तो उसके बाद फिर then just everything came on my shoulders, you know, the only male child. तो वो सब चीजें हुई. Again, मुझे थोड़ा सा cope up करना पड़ा. But then it was like I was only 19 and a half and I started working. And then this thing happened in 20, when I was 20. And then I started working, BPO industry. Again, 2005 की बात कर रहा हूँ मैं, 5-6 में. उस टाइम पे गुड़गांव कुछ नहीं था. Take off from there. Corporate world पता लगा क्या होता है क्या नहीं होता है. So Mercury ने मुझे basically उसमें धंधे में डाल दिया. तो वो सब चीजें जब हो रही थी साथ साथ मेरे साथ, as in terms of knowing to getting to know more people, quickly, that I'm adapting to things, right? तो वो चीज I think I would say कि Mercury, because it's in my third house, making Buddha-Titya yoga. What's your lagna? Cancer ascendant. Okay. Yeah. तो उससे फिर मुझे काफी बूस्ट मिला in terms of confidence, and then actually I started thinking my career, about, I started planning it, putting it onto the paper. वो सब चीजें मुझे मरकरी ने बहुत अच्छे से करवाई. उसके बाद Mercury, most people have a good Mercury period. या या अच्छे दोस्त भी बने उस टाइम पे, ऑफ कोर्स. और फिर लेकिन मैंने जॉब्स बहुत हॉप करी. तो क्योंकि अगेन work related, in terms of BPO industry was like, वो एक पोच करते थे उस टाइम पे एम्प्लॉयज को. तो वो चीज हुई मेरे साथ. बट देन 2007 के अंदर I accepted an offer in Bangalore, and I shifted to Bangalore. फिर हुआ तो अगेन अच्छा था एक्सपीरियंस अगेन. उस टाइम पे बैंगलोर वाज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, है ना. तो वहां पर मेरा करियर स्टार्ट हुआ 2010. फिर मैं एक और नई कंपनी, देन आई वेंट इनटू साइबर सिक्योरिटी कंपनी. अगेन राहु का 5th एस्पेक्ट है मरकरी पे. तो that got me into cyber security, with sun है साथ में उसके. तो वो सब combinations, and that I think then I sticked to just one company basically for a long time, for like 10-12 years, until recently. तो वो सब मरकरी ने मुझे काफी अच्छा करवाया. मैरिज भी हुआ, लव मैरिज हुआ, and inter-religion marriage. I married to a Hindu girl, and then I had a son in 2010. वो भी मरकरी में हुआ. और उसके बाद फिर प्रमोशंस हुई काफी सारी. कुछ लेटरल थी, कुछ हाँ, कुछ हॉरिजॉन्टल थी, कुछ वर्टिकल थी. किसी में ज्यादा काम था, किसी में कम काम, मतलब ओके काम था टाइप्स. तो वो चीजें इंजॉय करी, सीखी मैंने. मरकरी ने बहुत सिखाया. And then I got into the good books of leadership as well. People, presentation skills मेरे बहुत सुधर गए उसी बीच में. Again, byproduct of Mercury. तो बोलना सीख गए हम, और कस्टमर्स के साथ बातचीत, ये वो सब. और कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि आईटी में तो कितने फंक्शंस होते हैं एक ही कंपनी में. तो वो मेरी जॉब ही ये थी कि रोल ही ऐसा था कि जिसमें कि मुझे डिफरेंट फंक्शंस के साथ कोलैबोरेट करके उनको एक साथ चलाना था. ठीक है जी. So Mercury, like most people, you did well, particularly in career. हाँ, तो मरकरी में एक दो चीजें और बेसिकली. मैं थोड़ा सा, आई मीन, फ्रॉम द स्पिरिचुअल साइड ऑफ इट, राइट. सो आई हैव बीन अ स्पिरिचुअल पर्सन सिंस चाइल्डहुड.
हमारे घर में सब ऐसे स्पिरिचुअलिटी ज्यादा होता है, रिलीजन ऑफ कोर्स यस, एंड देन द इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, राइट, लेटर पार्ट है वो। तो वो चीज बचपन से रही, तो उससे क्या हुआ कि मुझे थोड़ा सा थोड़ा डेजावू मोमेंट्स भी आते थे बचपन में, लॉट आई सॉ हैपनिंग इन द स्कूल टाइम, कि भी मैंने ड्रीम में देखा और ये एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद हो रहा है। ये सब चीजें मेरे मेरे साथ बचपन से होती थी। मून कौन सी राशि में आपका? मून नीच का है, हम्म, वृश्चिक, अनुराधा तो नक्षत्र। केतु के साथ में? हाँ जी, हाँ जी। नो या वंडर, नो वंडर, ठीक है। लग्नेश भी है ना साथ में तो। मैंने केतु मून गिव्स यू अ वेरी स्ट्रांग इंट्यूशन, ठीक है। हाँ, तो वो मेरे साथ होता। फिर उसके बाद एक दो चीजें हुई कि जैसे कि जर्मनी में कुछ फुटबॉल स्टेडियम अटैक हुआ, तो वो जैसे मैं शाम को सोया, सुबह उठा, तो मैं शाम की न्यूज देख रहा था सुबह उठ के, तो इट वाज इन द न्यूज अगेन। ऐसा हुआ। फिर प्लेन क्रैशेस कि एक दो आई थिंक प्लेन क्रैशेस मैंने देखे, जो कि टाइगर एयरवेज का था एक एक नेपाल में कहीं पर, ऐसे टाइप्स, अगेन मून केतु का कॉम्बिनेशन, राइट। एंड देन मरकरी में फिर लास्ट में थोड़ा सा जब केतु आने वाला था बेसिकली, और शनि जो चल रहा था, जब 7.5 चल रही थी, तो वी आई स्टार्टेड हैविंग रिफ्ट इन माय मैरिज लाइफ, again third person involvement on all that stuff, families kind बहुत ज्यादा influence and all that, तो वो सब चीजें हो रही थी। I was able to figure that out, but I was not panicking. I was still saying, thinking कि चलो ठीक है, हो जाएगा, it's okay, I was giving the comfort again। मेरा Venus 4th house में है, अपनी राशि में है, तो द टाइप ऑफ लव आई हैव इज ऑलवेज लाइक मदरहुड लव, राइट, तो उसको नर्चर करने वाला लव है मेरा। तो मैं सॉल्यूशंस ढूंढता था कि भी चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऑल्दो आई वाज वर्किंग फुल टाइम, स्टिल माय वर्क वाइफ वाज आल्सो वर्किंग इन आईटी। तो लेकिन वो रोक नहीं पाया मैं उस चीज को, तो काफी प्रॉब्लम्स होती रही, एंड देन लाइक टू पीपल लिविंग अंडर वन रूफ बट इन टू डिफरेंट रूम्स, ऐसा सिचुएशन। उसमें ये हो गया कि मैं एवल आश्रम में जाना शुरू कर दिया, वहां बैठता था अकेले, मेडिटेशन अगर करनी है तो कर लेता था। तो कुछ एक्सपीरियंसेस भी हुए वहां पे। तो ऐसा थोड़ा बहुत मेरा स्टार्ट हो गया केतु का इम्पैक्ट के मरकरी शनि में। और फिर केतु आ गया उस टाइम, केतु स्टार्टेड इन 2019 मई, और जस्ट बिफोर 2019 मई आई थिंक आई ट्रेवल्ड, आई मेड अ डिसीजन, यू नो आई मेड अगेन, वो सही था गलत था आई डोंट नो, ठीक है। तो आई वुड स्टिल से कि ठीक है, जो भी मैंने डिसीजन लिया, आई ओन अप टू दैट, आई एम आई फील माई सेल्फ अकाउंटेबल फॉर इट, विच इज फाइन। तो मैंने डिसीजन लिया दैट आई टुक एन इंटरनल ट्रांसफर विद इन द कंपनी, एंड आई relocated myself to the UK। Now, बहुत लोगों को लगेगा कि अच्छा केतु में यूके चले गए तुम। However, it all depends on the person's या mind, right? या कि या उसको क्या पसंद है, कहाँ कहाँ उसको होम फील करता है वो बंदा, है ना, लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। बट तो वो चीज मैंने करी। उसमें एक मैंने लेटरल मूवमेंट लिया, लेकिन बिकॉज आई वाज अ पीपल मैनेजर मैनेजिंग अ टीम in India, but I chose IC role, individual contributor वाला role। तो मैंने वो for the same company, but then I relocated। सो यू वर सेपरेटेड फ्रॉम योर चाइल्ड, वाज इट? Yes, yes, yes। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ केतु है, जहाँ हाँ, बैठेगा काटेगा, ठीक है। yes, yes। ओके। And then home also, है ना, home छोड़ दिया तो life was in full 4 suitcases, सब कुछ पैक करके, because I was thinking कि चलो ठीक है, वहां चले जाएंगे, my sister is there, my uncle is there, बहुत सारे लोग लोग होते हैं। I'm a पंजाबी, I'm a Sikh, right, so हमारे रूट्स बहुत जगह फैले हुए हैं आई एम अ पहले से। पंजाबी, आई कैन टोटली वाउच फॉर इट। या तो तो बचपन से थोड़ा सा इंक्लिनेशन होता है, लेकिन अब मेरे माइंड में था कि खुद से जाएंगे, रादर टेकिंग एनीवन्स हेल्प। हाँ, तो वो चीज भगवान ने सुनी मेरी, काइंड ऑफ इन केतु दशा, स्टार्टिंग ऑफ केतु दशा, और मैं वहां पहुंच गया। अब वहां पहुंचने के बाद इट वाज अ डिफरेंट
ball game altogether. Different environment, different people, different atmosphere. कुछ लोगों को मैं जानता था because हम सब बैंगलोर से ही शिफ्ट हुए थे, मेरे से पहले कुछ एक दो लोग और शिफ्ट हुए थे, तो हम साथ ही काम करते थे, तो दैट वाज द ओनली रिजॉर्ट फॉर मी, टू टॉक एंड टू फिगर आउट कि घर कैसे लेना है, कितना टाइम लगेगा एंड ऑल दैट. तो आई वाज लिविंग इन एयरबीएनबी फॉर सम टाइम ओके. उस टाइम पे. तो अगेन उसमें भी अगेन दिक्कत होती है, और एक ही नहीं लेकिन चेंज करना पड़ता है बार बार, क्योंकि लॉन्ग स्टे जो होती है वो कई बार अवेलेबल नहीं होती केतु है. बंजारा बना देता आदमी. हाँ. एग्जैक्टली. मैंने तिनके उठाए हुए हैं, परों पे आशियाना नहीं है मेरा. नहीं है. दैट्स केतु. यस यस. और रहने केतु. को रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा. दैट्स हाँ हाँ. अच्छा, इसमें ना क्योंकि हम गुरबानी पढ़ते हैं बचपन से ही, तो उसमें ना गुरबानी में एक आती है, लाइन आती है कि क्योंकि केतु साधु बना देता है, साधु ही है वो बेसिकली, है ना, दरवेश. तो उसमें आती है लाइन की, सगली धरती साध की, कि सारी धरती जो है ना अब वो मेरी है, साधु की. साधु की है. तो वो केतु फोर्थ हाउस वाली लाइन है बेसिकली. मेरा मेरा चलित में फोर्थ हाउस है केतु. तो बेसिकली आई वाज गेटिंग बोथ द इम्पैक्ट्स, है ना, तो फिफ्थ का भी फोर्थ का भी. और वहां पर फिर सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगा. ऑफ कोर्स 4 months आई वाज इन एयरबीएनबी, एंड फाइनली केतु वीनस में आते आते मुझे एक प्रॉपर अपने लिए एक घर मिल गया रेंट पे. और उसके 1 महीने में फिर एक गाड़ी भी, सेकेंड हैंड गाड़ी वहां से उठा ली मैंने, क्योंकि वहां पर बसेस एंड ऑल दैट. शुरू में हाँ, जब मैं एयरबीएनबी था, ऑफ कोर्स ऑफिस जाते थे, तो कन्वर्ट करवाया इंडियन रुपीज से पाउंड्स में, तो वहां पर गए हम, तो वो कन्वर्जन हुआ फॉरेन करेंसी में, वो हुआ. प्लस वहां पर फिर मेरा जब केतु आता है ना, तो आपको आपको नोट्स नहीं मिलते, आपको फिर चेंज मिलती है, मतलब हाँ हाँ. कॉइन्स मिलते हैं आपको. तो वो चीज मेरे लाइफ में हुई जब मैं बसेस में ट्रेवल करता था, दो दो बस बदल के घर जाता था, वापस भी ऑफिस से आना तो दो दो बस, तो वहां पर कॉइन्स चलते हैं ज्यादा बसेस में. यहाँ यू हैव अ कार्ड, बट आई वाजंट यूजिंग कार्ड, तो मुझे लगा कि चलो 4 महीने निकाल लेंगे. तो वो चीज केतु वीनस से पहले पहले ऑलमोस्ट उसके कस्प पे हो गई, केतु और केतु वीनस में. ठीक है. केतु वीनस में क्या हुआ? केतु वीनस वाज ओके, wasn't दैट ग्रेट. कुछ फ्रेंड्स थे, मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, जिनको अगेन आई थिंक बिकॉज कॉन्स्पिरेसीज बहुत होती हैं केतु दशा में, एंड बीइंग एन आईटी एम्प्लॉय आल्सो, एंड देन माय फैमिली, जो एक्सटेंडेड फैमिली है मेरी बेसिकली, वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी मुझसे पहले से जानते थे. सो सम पीपल न्यू दैट कि ये बंदा जाने वाला है केतु महादशा में, सो दे स्टार्टेड डूइंग सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, अरेंजिंग थिंग्स फॉर मी. पार्ट ऑफ इट वाज कि देयर वाज, अब ऑफ मतलब ऐसा था कि भी मेरा वैसे भी कनेक्शन टूट ही चुका था फैमिली से. मेरी फैमिली और मेरे इन लॉज की फैमिली, दे हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट कि ये सब जो हो रहा है एंड ऑल So दैट. were you still married or were आई you वॉज मैरिड. under divorce proceedings? हाँ, अंडर मेरे पास, मतलब मेरे ऊपर कोर्ट केस हो गया था बिफोर आई लेफ्ट यूके, सॉरी इंडिया. तो एक कोर्ट केस तो था मेरे पे ऑलरेडी, तो वो चीज थी, तो क्योंकि बेसिकली केतु सबको. वीनस मैंने देखा है महिलाएं आदमी को प्रताड़ना देती हैं. हाँ, तो आई वॉज अवे फ्रॉम माई महिला या. बेसिकली. नहीं, पराई महिलाएं भी दे देती हैं ब्रो. अच्छा. केतु वीनस पर्टिकुलरली फॉर मेष लग्न, सिंह लग्न एंड मकर लग्न. अच्छा. women come after you with a fury. वो कोई भी हो सकती है, कोई आपकी वाइफ ओके. हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉस, कोलीग, एनीबॉडी. तो वाओ. इस पीरियड अच्छा. में पर्टिकुलरली ये 3 लग्न दे नीड टू बी अल्ट्रा सावधान. ओके. एनीवे, इट्स इजियर ऑन कर्क लग्न एंड कन्या लग्न, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. प्लीज अच्छा. कंटिन्यू. या. तो बेसिकली वहां पर एक मेरा एक कनेक्शन बैठा था, तो लेकिन वो भी टूट गया. दैट हैपेंड इन केतु वीनस बेसिकली. अच्छा, मतलब और वो चोट लगी, वो जोर तो से वहाँ लगी चोट. दूसरी महिला मिली और वो दिल तोड़ गया.
ठीक है। हाँ मतलब वो इन इन टर्म्स ऑफ कि अब वो अगेन कॉन्स्पिरेसी है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं तो मेरी एक गदर एक प्रेम कथा शुरू हो जाएगी। ओए, मतलब तो प्रेम कथा खत्म हो गया नेट नेट, सो यू फेस्ड हाँ पेन थ्रू विमेन। ठीक है। हाँ केतु जी, शुक्र, कॉपी केतु, बुक केतु शुक्र। केतु या, शुक्र, हाँ तो कंटिन्यू। उसमें हुआ। उसके बाद फिर केतु शुक्र में वर्क साइड में थोड़ा सा डिसरप्शन हुआ इन टर्म्स ऑफ कि थोड़ा मैं मून लाइटिंग कर रहा था हम्म। मैं, हम्म। जो कि मरकरी, जुपिटर, मरकरी शनि में शुरू हुआ एक्चुअली। हम्म। ठीक है, और उसमें मेरी गलती नहीं थी, इट वाज हम्म। काइंड ऑफ कि मेरे फ्रेंड्स थे बीच में इन्वॉल्व एंड ऑल दैट, हम्म। तो वो उसमें हुआ, लेकिन मैं फंसा मैं। हम्म। हम्म। तो वो एक ह्यूमिलेशन जो होती है एचआर के सामने बैठ के हम्म। और सिंगापुर से एचआर फोन कर रहा है तुम्हें, एंड एवरीथिंग इज बीन रिटन, और रिकॉर्ड की जा रही है, आपके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, टाइप्स केतु इंटेरोगेशन। वीनस हुआ या केतु सन हुआ? नहीं नहीं, केतु वीनस में हुआ ये। अच्छा, वाज दैट अ फीमेल एचआर? यस यस। ठीक है, कंटिन्यू। वो आ गया फिर उसका एस्पेक्ट, यस। या, या, तो या। वो चीज हुई मेरे साथ, वो ह्यूमिलेशन वाली थी। हम्म। बट थैंक गॉड कि मेरा बॉस जो था वो हो गया, एज एन इन टर्म्स ऑफ ही हम्म। स्टूड बाय मी। और अगेन वो चीज मैंने रफा दफा करी एक हफ्ते के अंदर, सीए को डबल पैसा दिया और वो करके सब कुछ करवाया, हो गया। हम्म। फिर अच्छा, ऑन द साइड ऑफ केतु, बिकॉज अंटिल दिस पॉइंट आई वाज नॉट अवेयर कि मेरी केतु की महादशा चल रही है। हम्म। तो वो उसमें क्या हुआ कि मुझे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे डेटा एनालिसिस के, करता रहा। तो वो मेरे अच्छे से हो रहे थे, बिकॉज आई वाज लर्निंग समथिंग न्यू एंड आई वाज मीटिंग न्यू पीपल एवरी डे। हम्म। ठीक है, तो वो चीज मेरी चल रही थी। एंड देन मतलब ठीक था। उसमें पहली बार केतु वीनस में मैं गया, क्या कहते हैं, टेम्पल्स विजिट करना शुरू किया हम्म। वहां पर यूके में। तो वो भी बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। ठीक है, हम्म। फिर आई ट्रेवल्ड टू इंडिया हम्म। केतु वीनस के एंड में, हम्म। एंड देन वेंट टू यूएस एंड देन केम बैक टू यूके। और वो जस्ट बिफोर द कोविड था वो, तो इट वाज लाइक पैनिक सिचुएशन, चेकिंग इतनी हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे जब हो रहा था, क्योंकि किसी को पता नहीं था, और हमारा कंपनी का इवेंट था वो, बहुत बड़ा इवेंट, तो उसमें लाखों लोग आते हैं। तो हम्म। वो चीज़ खत्म हुई, उसके बाद जब मैं वापस आया एंड देन उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया हम्म। केतु में, कि आप बाहर ना जाओ और चुपचाप घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम। हम्म। ठीक है, तो वो चीज़ हुई मेरे साथ अनटिल जब तक कि वो फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन, ये वो सब चीज़ें स्टार्ट नहीं हो गई। हम्म। उसके बाद लेकिन एक ना एक टाइप ऑफ अगेन लोनलीनेस फील होना शुरू हुआ अंदर से। आई वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट कि क्या हो रहा है, अदरवाइज बिकॉज मेरा लग्नेश मून है, तो मून फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो ऑल्दो मुझे कोई इतनी जल्दी सैड कर नहीं सकता कोई सिचुएशन, लेकिन कुछ एक ना तरह की, नॉट आई वुड नॉट से सैडनेस, बट एक तरह की ना बड़ा ही अजीब सा चीज हो रही थी मेरे साथ, जिसमें कि एक स्टिलनेस भी आ रही थी, एक एक सम सॉर्ट ऑफ यू नो एक तरह का ना नमनेस कह सकते हो मे बी। तो वो चीज ना एंटर हो रही थी, आई वाज नॉट एबल टू फिगर दैट आउट, बट आई वाज स्टिल वर्किंग, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स उससे ज्यादा नहीं आ रही थी। हम्म। um, तो आई थिंक दिस थिंग वाज बेसिकली, it wrapped up the whole Ketu Venus. So it was a okay period, हम्म। not much, but yes, one humiliation from the HR. फिर आया केतु सन, हम्म। दिसंबर टू अप्रैल 2021। उसमें वर्क फ्रॉम होम जो था वो कंटिन्यू हुआ, एंड देन वी गॉट द वैक्सीन शॉट्स उसमें। एंड देन बिकॉज सन इज इन थर्ड, तो आई द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू मीट माय सिस्टर आफ्टर लॉकडाउन लिफ्टेड अप। तो वो दूर रहती हैं, तो एंड देन आई स्टार्टेड हम्म। doing kind of a journey towards her house between, तो आई थिंक एक या दो बार केतु सन में मैं गया हूँगा उनके पास मिलने के लिए। उसके बाद फिर फ्रेंड्स के साथ, जो और दूसरे फ्रेंड्स थे उनके साथ अच्छा खासा ओके चल रहा था। तो इस टाइम तक भी मुझे नहीं पता था कि केतु महादशा चल रही है। हम्म। ऑल्दो आई वॉज कंसल्टिंग वन एस्ट्रोलॉजर, जो कि थोड़े से बुजुर्ग हैं, वो
वो मुझे बोलते थे कि बेटा आप ठीक हो, बेटा बेटा करके मुझे समझाते थे वो। तो मुझे कभी उन्होंने ऐसे नहीं बोला कभी कि भाई कि कुछ खराब है या कुछ ये उपाय कर लो या वो, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने कहा ठीक है, चलते रहो जैसे चल रहा है करते रहो। फिर उसके बाद केतु सन के अंदर ना मैं मेडिटेशन करने लग गया। उस केतु सन में मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए। अम, और जैसे कि इवनिंग्स के अंदर मैं बैठ के आफ्टर ऑफिस वर्क तो मैं मेडिटेशन करता था। और ये जो पार्ट है मेरा हेड पार्ट, ये बिल्कुल ही वाज इट स्टार्टेड गेटिंग नम्ब। और एक यहाँ कह लो कि एक तरह की स्टिलनेस आनी शुरू हो गई। मेरे जो दिन में 2 कप चाय पीता था मैं, वो 6 कप हो गए। बिकॉज अगेन आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट कि हो क्या रहा है। मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, जूम मीटिंग्स भी कर रहा हूँ, कंपनी में कॉल्स भी ले रहा हूँ, प्रेजेंटेशंस भी दे रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, राइट। लॉजिकल थिंकिंग भी चल रही है ब्रेन में, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक तरह का स्टिलनेस आ रहा है। तो वो चीज आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट। मैं अपने ब्रदर से बात करता था कि ऐसे कर क्या हो रहा है मेरे को एंड ऑल दैट। तो ही वाज लाइक कि भी कि मेडिटेशन करो। उसने मेरे को कहा कि थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा ज्यादा काम कम करो एंड ऑल दैट। तो ही बेसिकली कंसल्टेड लाइक दैट एंड देन गुड एडवाइस, वेरी गुड एडवाइस। हाँ। तो उनको पता था कि मेरी केतु की महादशा चल रही है, बट ही डिडंट टेल मी ओके। कि केतु महादशा है। अच्छा, वो एक अलग चैप्टर है बिकॉज वो लोग मेरा ब्रदर जो है वो ही इज कनेक्टेड टू नागा साधुस का ओके। एक अखाड़ा। तो उनमें उनके जहाँ पर जो बड़े जो महापुरुष हुए हैं वहां पर जहाँ पर वो रहते हैं, वो उन्होंने तपस्या करी एंड ऑल दैट। तो केतु जाने से सॉरी केतु शुरू होने से पहले मैं उनके पास एक बार गया था वहां पर माथा टेकने। तो मेरा वो कनेक्शन जो था नागा साधु से वहां पर कनेक्ट हो गया और शिव से कनेक्ट, क्योंकि वो शिव जी और गुरु नानक देव जी को ज्यादा मानते हैं। तो वो वहां से मेरा कनेक्शन वहां बैठ गया बिफोर एंटरिंग इनटू केतु महादशा। गुड फॉर यू। हाँ जी। तो वो अच्छा हुआ। तो केतु सन मेरा बेसिकली इसी में रहा। एंड देन इन केतु सन के अंदर ही, बिकॉज इट्स अ सेकंड हाउस लॉर्ड है, तो मैंने आई ट्राइड फिगरिंग आउट कि वहां पे क्या कहते हैं यूके में एक और यू नो टू मूव बेसिकली सेकंड हाउस लॉर्ड इन थर्ड। तो मूवमेंट हुआ मेरा बेसिकली फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस, अ लिटिल बिगर फ्रॉम द प्रीवियस वन। वो था मेरा बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केतु मून। केतु मून में 3 नंबर घर में आ गया 2 नंबर से, और वहां से प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। ठीक है। और उसमें फिर अगेन नए नेबर्स, नया एनवायरनमेंट, नया लोकेलिटी, बिकॉज वहां पर शाम को द सोशल लाइफ इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पीपल ओवर देयर। इट्स नॉट यहाँ पर इंडिया की तरह कि बाहर बाहर चाय की टपरी पे बैठ के हाँ जी सर क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ऐसा कोई लूज टॉक्स नहीं होता है, राइट। तो वो चीज थी। उसमें बड़ा ही थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव माहौल था बेसिकली। फिर केतु मून में जब नई जगह ले ली वहां पर, तो थोड़ा सा वहाँ इंटीरियर इंटीरियर किचन सेटअप ये वो अकेला ही रहता था मैं, तो आई स्टार्टेड गेटिंग बिजी इन दैट। फिर केतु मून में थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि बिकॉज के मून इज माई लग्नेश एंड इट इज सिटिंग along with केतु, तो बेसिकली राहु केतु के एक्सेस में है वो। तो वहां पर मेरा आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट क्राइसिस हुआ। हुआ। हाँ, वहां पर ऐसा हुआ क्योंकि माहौल भी वैसा बन रहा था, नया नया माहौल में। अब आप जाएंगे तो क्योंकि मैंने अगेन। देखा दो प्लेनेट इकट्ठे बैठे हों तो बड़ा स्ट्रांग फल देते हैं व्हेन दे रन इन महादशा दशा टुगेदर। ओ ओके। या तो उसके इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हाँ, तो वो चीज मेरे साथ हुई, एग्जैक्टली हुई अक्टूबर 2021 में। है। और उसमें फिर मुझे ऐसा हुआ कि जो आई थिंक मैंने आपसे कंसल्टेशन में भी मैंने बोला था आपको कि भी वो जो चक्रास होते हैं, तो उसका सेंसेशन आना शुरू हो गया मुझे। इनिशियली आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट। इनिशियली तो मैं अपना काम कर रहा था सब कुछ, और
ऑफिस का काम, ये वो सब चीजें चल रही थी नॉर्मल, बट विद आई थिंक वन डे आई रियलाइज कि समथिंग इज हैपनिंग इन द बैक ऑफ माई स्कल। हम्म, कि वो जैसे चल रहा है ना, वो जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि वो गरारी, हम्म, हम्म, गरारी का हर एक एक ग्रूव होता है। तो वो ग्रूव जैसे चलता है ना, हम्म, तो वो पता लगता है। तो वो ग्रूव की तरह ऐसे मेरे सेंसेशन हो रहे थे पीछे बैक ऑफ द स्कल। तो वो चीज मैंने अपने ब्रदर से पूछी, तो ब्रदर ने मुझे सिर्फ ये बोला कि भगवान तेरे को अपने होने का सबूत दे रहा है। हम्म, तो यू जस्ट मेडिटेशन करो, आराम करो, और कुछ मत करो ज्यादा। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने फिर यही किया। फिर मैंने, अब वो इतना इंटेंस हो गया कि उससे क्या हुआ कि और केतु भी मेरे 5th हाउस में आ गया था उस टाइम पे गोचर में। तो इट वाज केतु कमिंग बैक टू द okay, नेटल। तो रिटर्न, या केतु रिटर्न हो गया। तो आईज जो थी मेरी वो हाफ आगे हो गई, ऊपर चढ़ जाते हैं आदमी के तो। चढ़ जाती है। हाँ, और आपको, हाँ, और आपको पता भी नहीं चलता है, हम्म, दूसरे को ही पता चलता है कि भाई अरे ये क्या हो रहा है। तो वो चीज हुई मेरी, और उसी से आइडेंटिटी क्राइसिस स्टार्ट हुआ बेसिकली। एक दिन मैं बाहर निकला सैर करने के लिए इवनिंग में, तो जैसे ही बाहर निकला अगेन, केतु आपकी ड्रेसिंग सेंस भी बेड़ा गर्क कट कर देता। कर देता है ना। काले तो मेढे कपड़े काला काला मेरा मेंढा भेष, वेश, हाँ, गुनी गुणी परिया मैं फिरा लोग कहें तरवे। दरवेश, हाँ। तो एग्जैक्टली फरीद जी जैसे बोल रहे हैं ना, वैसा ही है उसमें। हाफ शॉर्ट्स में बेसिकली मैं निकल के ऐसे ही जल्दी जल्दी में कि चलो आकर खाना बनाता हूँ। इट वाज लाइक 6:30 इन द इवनिंग, एंड देन आई जस्ट वेंट आउट एंड आई वाज इन माय चप्पल्स। तो आई गॉट, आई मैंने किसी की तरफ देखा, और उसने मेरे को देखा, तो उसको दिखा कि ये कैसा आदमी है, चप्पलें पहनी हुई हैं, कपड़े भी वैसे ही हैं, ठीक है, एंड देन आंखें चढ़ी हुई है। सो दैट वाज द ग्लिम्स ही गॉट फ्रॉम माय पर्सनालिटी फ्रॉम देयर। और उसने फिर जो भी पूरा हुआ, स्टार्टिंग हुई वहां से मेरी क्राइसिस, इसकी आइडेंटिटी क्राइसिस एंड ऑल दैट। तो वो पूरा उन्होंने बेसिकली मेरे को जीरो ट्रस्ट जोन में डाल दिया, लेवल कर दिया जीरो ट्रस्ट। ठीक है। अगर उसके बाद फिर मेरी चेकिंग चेकिंग एज इन कि देखा गया कि भाई ये करता क्या है, फिर वो सब चीजें स्टार्ट हुई। ठीक है, ये मर्सिडीज चला रहा है, ये इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, घर है, बड़ा है, क्या कैसे पैसे आ रहे हैं, ऑल दैट। तो वो सब चीजें हुई स्टार्ट इन टर्म्स ऑफ पीपल स्टार्टेड इवन स्टॉकिंग मेरे गाड़ी के पीछे एंड ऑल दैट। तो लेकिन केतु मून है, तो आई वॉज एबल टू सेंस वेरी इजिली कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन सी गाड़ी पीछे बार बार आ रही है। तो मैं राउंड अबाउट पे जान के 2 बार चक्कर मार लेता था जस्ट टू फाइंड आउट देयर रिएक्शंस एंड ऑल दैट। तो मेरा भी वो थोड़ा सा पॉइंट चल रहा था। और उसी बीच में मैंने एक और एस्ट्रोलॉजर को फोन किया, क्योंकि ये सब चीजें चलने लग गई, तो मुझे कहीं से तो रिलीफ चाहिए था कि एटलीस्ट लेट मी अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे एक बार बोला कि एक और, वो लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने जो बोला, उन्होंने उनकी लैंग्वेज आई थिंक प्रोबेबली बड़ी रॉ थी। तो उन्होंने मुझे काफी डरा सा दिया, तो वो चीज मुझे लगी फिर। अब आई डोंट नो हाउ, बट दैट वाज द पॉइंट जस्ट राइट आफ्टर 1 मंथ ऑफ दिस इंसिडेंट कि मुझे, मैंने सोच खुद को बोला कि लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी, कि ये लोग मुझे क्या डराएंगे, लेट मी डू इट। तो वो जो 6th हाउस वाला जो है ना, मार्स, उसने पंप किया, और जुपिटर ने ज्ञान दिया कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ बेटा। तो वहां से स्टार्ट हुआ मेरा। और वो ऐसा स्टार्ट हुआ कि अभी तक नहीं रुका वो। लेकिन उसी टाइम फ्रेम में क्या हुआ कि एक और एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि कुछ नहीं है, यू डोंट वरी, नथिंग विल हैपन टू यू, इट्स अ बैड टाइम, विल पास, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। उन्होंने बस इतना ही बोला। तो लेकिन मुझे चाहिए था कि लॉजिक, मैं लॉजिकल हूँ तो लॉजिक चाहिए था, क्यों हो क्यों रहा है ये, कि मैंने क्या किसी का लड़कियां छेड़ दी मैंने किसी के घर की, या मैंने क्या गलत कर दिया बताओ मेरे को, जो मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस में डाल दिया, यू नो। तो वो सब क्वेश्चंस मेरे माइंड में चल रहे थे। फिर ये साथ में एस्ट्रोलॉजी भी चल रही थी, यूट्यूब वॉज मेरा साथी। तो चलो जी, वर्क फ्रॉम होम वैसा ही था, तो जितना मैं देखता रहता
था। तो ये सब केतु मून वाज वेरी इंटेंस, और द स्टार्ट ऑफ दैट पीरियड वाज टू मच। उसी बीच में फिर देन आई गॉट टू नो अबाउट योर आर्टिकल, हम्म, जो आपका आर्टिकल ब्लॉग था वो आया, और जब वो पढ़ा मैंने देन आई फिगर्ड आउट, अरे ये ये जो जो लिख रहे हैं ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। इट रेजोनेटेड 110% कि या भाई ये क्या हो रहा है यार ये। तो वो चीज मतलब उस जगह से, उस टाइम से फिर देन आई टुक योर कंसल्टेशन विद इन 1 मंथ कि भाई फिगर आउट कि भी क्या हो रहा है। फिर मेरी आपसे बात हुई, आपने मुझे बोला, कुछ एडवाइसेस दिए आपने, है ना, वो मैंने करे। अब वहां पर ना मतलब बेसिकली वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज में जाके ना उपाय करना बड़े मुश्किल है। मुश्किल है, राइट। तो ज्यादा उपाय मेरे से हुए नहीं, जितना भी उपाय हो सकता था मैं करा, लेकिन फिर आई फिगर्ड आउट कि उपाय जो है वो स्पिरिचुअल उपाय ही हो सकते हैं। तो देन आई स्टार्टेड रिसाइटिंग महामृत्युंजय। तो वो मतलब उसकी तो मतलब फुल रेल लगा दी मैंने, क्योंकि अब इसमें था ये कि भी मैंने कभी कहीं पर पढ़ा हुआ था वो, coming from a background of Punjabi and Sikh family, we don't usually get to know other things than गुरबानी। तो लेकिन मैंने कहीं पढ़ा हुआ था तो वो मुझसे जल्दी हो गया, और लग्नेश भी खैर फिफ्थ में है, तो जो चैंटिंग है, जो मंत्रास हैं, वो मुझे जल्दी आ जाते हैं, याद हो जाते हैं। तो वो चीज मैंने काफी करी। फिर चौपाई साहब था, वो मैंने उस मिक्सअप किया उसको साथ में। अच्छा, केतु के लिए, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ जी। केतु के लिए वन वेरी गुड थिंग इज दुख भंजनी साहब। ओ, ओके। अच्छा अच्छा सब अच्छा। बानी में जो मेरे एक्सपेरिमेंट रहे हैं, हाँ जी। मेरे अपने केतु की दशा में, व्हेन आई वाज गेटिंग हैमर्ड, सो दुख भंजनी आई यूज्ड टू लिसन टू इट लाइक ट्वाइस और थ्राइस अ डे। ओके। हाँ मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन मैंने फिर साथ में फिगर आउट किया नारायण कवच। आई आई डोंट नो हाउ इट केम इन फ्रंट ऑफ मी, अगेन यूट्यूब से मिला वो, लेकिन उससे मेरा मन इतना हुआ कि वो इट बिकेम माय रूटीन, कि उठने के बाद वही करता था मैं, पढ़ता था। और संस्कृत मुझे, मैंने कभी नहीं पढ़ी, मेरी सिस्टर्स ने पढ़ी है संस्कृत स्कूल में, लेकिन मैं पंजाबी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो संस्कृत नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे वो समझ आती थी संस्कृत इन केतु पीरियड। तो वो चीज मैंने देखी कि भी एक ट्रांसफॉर्मेशन सा हो रहा है हर जगह से, हर एस्पेक्ट से ट्रांसफॉर्म हो रहा है आदमी। और फिर केतु मून के अंदर ही मेरा यू नो जो बैक प्रॉब्लम था, तो वो स्पाइन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गया, और रादर इट रीसर्फेस्ड, एंड देन आई गॉट एमआरआई डन एंड ऑल दैट। तो वो एक एपिसोड अलग था उसका, केतु का, शोइंग दैट केतु मून इज गोइंग ऑन। उसके बाद फिर केतु मार्स शुरू हुआ। अब अगेन केतु मार्स, as you said कि भी it is like it brings havoc, it brings men at और war। तो वो चीज गुस्सा हुई। माथे पे चढ़ा होता। हाँ, तो मेरा गुस्सा जो था वो इन टर्म्स ऑफ फिगरिंग आउट कि why people are actually treating me like that, है ना। तो मेरा वही था उसमें, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट। तो उसमें फिर मैं पुलिस को भी इन्वॉल्व किया अपनी तरफ से, बिकॉज आई सॉ पीपल कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी। तो वो मुझे लगा कि भाई अगर मैं फंस गया, क्योंकि एक केतु डर देता है ना, तो वो डर था। तो मेरे को लगा कि भाई यार ये अगर मैं फंस गया तो हाउ वुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई सेल्फ। तो वो डर जो था ना, वो उसने मुझे बेसिकली ड्रोव मी टुवर्ड्स पुलिस स्टेशन। तो वहां पर मैंने बात करी उनसे, पूरा क्लियरली बताया उनको, एंड दे टुक दैट रिपोर्ट एंड ऑल दैट। तो वो केतु मार्स में हो गया, but things still were same, not improving at all, rather it was they were going downside। um, और स्पिरिचुअलिटी तो साथ साथ चल ही रही थी, वो तो एक्सपोनेंशियली गेन हो रहा था उस टाइम पे। बिल्कुल। ठीक है। और आई वुड रादर से कि um, उस टाइम पे आई डिसाइडेड कि इंडिया चलते हैं वापस, बिकॉज आई वाज नॉट डूइंग, आई काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्टेड माई सेल्फ एंड देन सेड ओके फाइन, बहुत हो गया है, अब इंडिया चलते हैं वापस, और रादर आई विल टॉक टू द एचआर एंड देन गेट दी वर्क फ्रॉम होम फ्रॉम देयर फॉर सम टाइम एंड देन कम बैक, समथिंग लाइक दैट, दैट आई नीडेड अ चेंज इन एनवायरनमेंट बेसिकली। तो वो होने से पहले पहले ही कंपनी ने जो है बता दिया कि भी आप रिस्ट्रक्चर हो चुके हो। तो आप इधर, या तो हमारा ऑफिस एक कायरो में है, इजिप्ट में है, तो उन्होंने कहा कि या तो आप वहां मूव हो जाओ,
या फिर यू फिगर आउट समथिंग फॉर योरसेल्फ। और मेरा वीजा जो था वो वर्क डिपेंडेंट था, तो आई सेड ओके फाइन, वर्क वीजा है तो मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू मूव देयर, बट आई वांट टू गो बैक टू इंडिया। तो ऐसे करके मैं 2 महीने वहाँ और रहा, और उसके बाद फिर एंड देन आई केम बैक टू इंडिया। सो केतु, एंड देन दिस थिंग वाज एक्चुअली इन केतु राहु कस्प पे, क्योंकि अप्रैल में ही जॉब लॉस इज अ केतु राहु स्पेशलिटी, या हाँ, तो वो स्टार्टिंग में हो गया, मुझे मिल गया मैसेज केतु राहु में। और केतु राहु में एक चीज और हुई जिसमें कि था, जो मैं कॉन्स्पिरेसीज बोल रहा था ना आपको, तो वो कॉन्स्पिरेसीज हुई मेरे साथ केतु राहु में, which was like I was being given some substance in the cold drink ओ माय गॉड। in front of, हाँ, तो ये मेरे को पता था ऐसा, क्योंकि उस टाइम तक मैं बृहत बृहत पराशर हो रहा पढ़ रहा था मैं। तो उस टाइम पे मैं आई वॉज एबल टू मैप माई वीक्स, कि भी वीक में ये हो सकता है, ऐसा ऐसा हो सकता है। तो वो उसमें एक मैंने पढ़ा कि उसमें था, आई थिंक केतु राहु में मार्स की प्राण दशा में, कि भी यू माइट गेट पॉइजन एडमिनिस्टर्ड बाय योर वाइफ। मेरे माइंड में कभी आया नहीं, खड़का नहीं उस टाइम पे, क्योंकि वाइफ के साथ में रह ही नहीं रहा था, कोई विमेन साथ में थी नहीं, क्योंकि जो ऐसी कॉन्स्पिरेसी करे। तो मैं पढ़ लिया मैंने, लेकिन आई डेंट बिलीव इन दैट। तो वो हुआ, लेकिन उसी वीक में फ्राइडे में हम अपने मुझे मेरे फ्रेंड्स ने अप्रोच किया कि चलो डिनर के लिए चलते हैं। तो मैंने कहा चलो। तो हम चले गए, और डिनर जिस रेस्टोरेंट में गए, उस रेस्टोरेंट में हम मतलब जाते रहते थे, तो जानते हैं, वो इंडियन ओनर्स हैं उसके। तो वहां गए, वहां पर बैठे, और वहां पर उन्होंने सर्व किया। तो सर्व करने में मेरे मेरा फ्रेंड जो था वो यहाँ पे बैठा हुआ था, उसकी वाइफ सामने बैठी हुई थी, एंड देन वी ऑल वर चैटिंग एंड हैविंग फूड। तो जो ड्रिंक दिया उन्होंने, मैंने जो जब सिप लिया, तो बिकॉज ऑफ द चक्रास, राइट, द जो उस टाइम पे भी चल रहे थे, तो जब मैंने सिप लिया तो वो रुका, वो सेंसेशन मेरा बंद हुआ जब मैंने वो सिप लिया। दैट्स हाउ आई फिगर्ड आउट। और फिर मेरे माइंड में वो बात ठनकी कि भी मैंने बृहद पराशर होरा में ये पढ़ा था, इस वीक में ये हो सकता है, एंड दिस इज हैपनिंग राइट ऑन फ्राइडे, माय गॉड। ऑन वीनस, ऑन वीनस डे। तो वो चीज हुई, और देन आई डिडंट मेक एनी सीन आउट ऑफ इट, आई जस्ट वेंट, कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, किसी को बताया भी नहीं मैंने, एंड देन आई केम बैक। तो वो चीज मेरे साथ हुई, तो उससे मेरा एस्ट्रोलॉजी में और ज्यादा बिलीव यकीन हो गया। बढ़ा। फिर उसके बाद केतु जुपिटर आ गया, सॉरी केतु राहु में ही फिर इंडिया वापस आ गए थे। इंडिया वापस आके अगेन घर नहीं जा सकते हैं, कोर्ट केस हुआ हुआ है, मॉम के पास वैसे नहीं जा सकते थे, क्योंकि केतु मून में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मॉम से कहासुनी हो गई थी। तो देन आई हैड टू फिगर आउट सम rental place for myself, and since then I'm being in rental space. तो वो चीज कंटिन्यू हुई, और केतु राहु खत्म हुआ ऑन अ ओके नोट। केतु जुपिटर आया, मैंने सबसे पहले अपना ब्लड डोनेट करना शुरू किया, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट। एक स्पेल्स आते थे मुझे, जैसे कि गुरबानी में ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, वैसा क्यों लिखा हुआ है, अगर प्रेमानंद जी महाराज कुछ प्रवचन कर रहे हैं तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला। तो वो क्यों वाला जो पार्ट था ना, वो मुझे अपने आप ही समझ में आता था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला है। तो वो चीज केतु जुपिटर में ज्ञान केतु जो था ना। जुपिटर, बाय द हाँ, वे ये जो आर्टिकल आप देख के आए मेरे पास, वो मैंने केतु जुपिटर में लिखा था। To अच्छा। get that divine download, यस, universe यस, tries to teach you. कनेक्ट, हाँ। लेकिन वो जो सेंसेशन था ना मेरा चक्रा का, वो खत्म हो गया था केतु राहु के अंदर। केतु जुपिटर जो है ना, वो कनेक्ट करता है आपको डिवाइन से, बेसिकली वो पीरियड, उसमें जॉब भी लगी मेरी एक। It's the return of hope. हाँ जी। केतु का फर्स्ट पार्ट बहुत जहरीला होता है, केतु जुपिटर से यू एंटर द सेकंड पार्ट, तो केतु जुपिटर ज्यादातर लोगों का अच्छा जाता ओके, है। हाँ। तो इट वाज दैट सॉर्ट ऑफ पीरियड, आई वुड से आई gained a little bit in that period, and and then my मेरी मासी का देहांत हुआ उसी में। उसके बाद वर्क तो चल ही रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मेरा जब केतु शनि स्टार्ट होने वाला था, तो उसमें क्योंकि मैंने डिवोर्स केस फाइल किया था केतु जुपिटर में अपनी तरफ से, और चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल किया था अपनी तरफ से। तो वो चीज अभी चल रही है, लेकिन फिर केतु शनि में बेसिकली स्टार्टिंग में मुझे जॉब छोड़ना पड़ा,
because तो शनि आ गया, हाँ game on. वो स्टार्ट हुआ तो आई वाज नॉट आई वाज नॉट फीलिंग एनी रिमॉर्स दैट कि मुझे छोड़नी पड़ रही है और ये वो, बट इट वाज लाइक ठीक है, हो रहा है तो हो रहा है, वो जाने दो, एंड देन विल फिगर आउट। तो वो चीज हुआ, और होली प्लेसेस टेम्पल्स जाना, और रेमेडीज में डेली रेमेडीज करने लग गया, डॉग्स के साथ रेमेडीज तो मैं कर ही रहा था, केतु जुपिटर में स्टार्ट हो गई थी, राइट, ब्लड डोनेशंस होनी थी, तो आई वाज गेटिंग बैक टू नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ माय लाइफ, ठीक है। लेकिन उसमें ना थोड़ा केतु शनि में ये होता है कि आपको शनि रियलिटी दिखाता है, क्या? तो रियलिटी मुझे दिखाई इन टर्म्स ऑफ पीपल, बिकॉज कॉन्स्पिरेसीज जो हो रही थी एंड ऑल दैट, सो आई स्टार्टेड कटिंग डाउन दोज पीपल फ्रॉम माय लाइफ इन केतु शनि। um, और फिर मुझे एक और चीज पता चली उसमें, अच्छा केतु शनि में एक और सर्जरी मैंने करवाई, अगेन सिमिलर सर्जरी, सेम डॉक्टर, सब कुछ सेम, उसमें उन्होंने मुझे बताया कि यू हैव स्लीप एपनिया, तो जो कि मुझे नहीं पता था। एक्सेलेंट। केतु शनि और स्लीप एपनिया ब्रीथिंग इशू नहीं हो, कम ही होता। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ, तो वो चीज मुझे तब पता चली, एंड फिगर आउट कि आई एम डेफिशिएंट इन मेनी विटामिन्स ऑल्सो, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया मल्टी विटामिन एंड अदर स्टफ, बेसिकली लुकिंग आफ्टर माय हेल्थ। So not that bad, but it actually helped me in terms of realizing the truth and people, people behind conspiracies and all that. पढ़ते गिर जाते। हाँ, एंड लास्ट पीरियड अभी जो चल रहा है वो केतु मरकरी चल रहा है मेरा, अभी मई 2026 तक है। इसमें अगेन एस्ट्रोलॉजी इज कंटिन्यूइंग, बीएनएन और केपी एस्ट्रोलॉजी दोनों अब मैंने और सीख लिए हैं, तो बीच में वास्तु भी करता हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक आई एम नॉट I'm not gonna do anything with it, but I just want to do it for myself. Yeah. I want to do something in medical astrology later in the life, but then we'll see कैसे होता है वो। जुपिटर मार्स है मेरा 6th हाउस में, तो I want to do something from that end. फिर गुरु से विजडम एंड ऑल दैट, ये सब चीजें मरकरी में फिर से मिलती हैं। केतु पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन जाना कम हो जाता है। कुड बी डिप्रेशन, कुड बी एपनिया, कुड बी समथिंग एल्स, कुड बी अ ब्रीथिंग इशू। केतु मरकरी में वापस दिमाग रिवाइव होना शुरू होता है। ओके ओके, हाँ, लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है ना वो आना शुरू होता है, राइट। आई वुड से। तो वो हुआ, और बाकी अब मैं एआई सीख रहा हूँ, खुद से सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, राइट। तो वो अगेन मरकरी में जैसे आप कह रहे हो कि वो ब्रेन आना शुरू, लॉजिक आना शुरू होता है, तो लर्निंग भी आ रही है, लर्निंग की कैपेसिटी और उसमें इंक्लिनेशन आ रहा है। आई एम जस्ट ऊपर से अगेन कुछ वो है कि थोड़ा केतु इन सेकंड चल रहा है अभी, तो मनी इज लिटिल स्टक समवेयर, तो ऐसी छोटी मोटी चीजें हो रही हैं बट द जो आई वर्क थिंक। शुरू होगा। दूसरे एक चीज मैं और आपको मेंशन करना चाहूंगा, केतु शनि आपका ठीक जी, ठाक इसलिए निकल गया बिकॉज यू आर लिविंग अवे फ्रॉम योर वाइफ। अदरवाइज ओके, केतु शनि इज अ पीरियड जब घर में इतना कलेश होता है, ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस होता है, आपका तो पहले ही चल रहा है, तो उसमें क्या कर लेते। तो बस इतना मतलब ऐसा है, और अभी तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू माय दशा संधि नाउ, जब वो शुरू होगी वीनस के साथ। बाकी तो और कुछ नहीं, आई जस्ट वांट टू रैप अप फ्यू थिंग्स इन माय लाइफ, राइट। आई थिंक आई एम होपिंग कि नेक्स्ट ईयर में 2026 में कुछ कंक्लूजन्स आए। दशा संधि क्या है, पुराना सारा साफ करते हैं। ओके केतु का ओके, जो मचाई हुई तबाही है उसकी सफाई होगी पहले। अच्छा, सेकेंड ईयर ऑफ शुक्र से यू विल सी वेयर थिंग्स आर गोइंग, एंड शुक्र ओके सन से यू विल बी स्टडी ऑन द पाथ। ओके So ओके, with this, या thank you for sharing all these नो heartfelt नो, stories. It was such a beautiful interview. I was just listening to you. And you know, the authenticity and innocence with which you have shared these stories, that's amazing. And thank you so much. And we'll be in touch. And I'll upload it in a day or two. And ओके। I hope people get some inspiration and solace from your story. कि केतु जो खत्म करता है, that is for a reason. And later on in life, you thank it. ओके, या बट कुछ नथिंग रिटर्न्स बैक है ना, Yeah. आफ्टर आती भी केतु। है तो बहुत ट्रांसफॉर्म होके आती। केतु का कांटा जल्दी जुड़ता नहीं है।
Okay. आएगा, बहुत ट्रांसफॉर्म होके आएगा, एंड यू विल टेक अ वाइजर स्टैंड इन वीनस. ठीक है, देखो, ठीक है. मरकरी इज इंटेलिजेंट, केतु इज मलंग, शुक्र इज वाइज. वो हाँ. जान भी जहान भी, वो दोनों का प्लेनेट है, बिकॉज मरकरी इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इज लाइक हॉर्स पावर ऑफ योर कार. Correct. Right. केतु इज लाइक अ पत्थर इन विच योर कार स्लैम्स. Oh, okay. वीनस इज विजडम विच इज लाइक द स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर कार. वो डिसाइड करता है जाना कहाँ है, कितनी स्पीड से Okay. पहुंचेंगे, वो बाद में. तो अच्छा. वीनस एंड जुपिटर आर प्लैनेट्स ऑफ विजडम. अच्छा, वीनस भी. अच्छा, in अरे a way गुरु है ना, दोनों ही गुरु हैं. या एक देव गुरु एक राक्षस गुरु. एंड राक्षस गुरु तो ज्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए, देवताओं से काम कराना सौखा है bro. वैसे कलयुग है, उसी का ही टाइम चल रहा है है ना, तो तो वो yeah, राक्षसों को टीम बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट. प्लस yeah. whenever आप अगर माइथोलॉजी पढ़ोगे, whenever शुक्र एंड जुपिटर हैव गॉन टू वॉर, Mm-hmm. Jupiter has never been able to win. It is always Lord Vishnu who has had to come, जो शुक्र को रोक पाए. So Okay. Venus I consider it the wisest planet, अच्छा. wiser Okay. than Jupiter, because Jupiter is little बल्ले बल्ले, वो देखा जाएगा जो होगा. Shukra is very very realistic. It's the most underrated planet. So the kind of हाँ. intelligence and wisdom and outlook you get in Shukra, that's next level. Yes. Awakening कई बार लोगों के हो जाते हैं, especially people who have strong spiritual leanings. फिर वो spiritual के साथ साथ material awakening भी हो जाती है. They are able to see things. ऐसा नहीं Okay. है कि आप सब खरीद डालोगे, but you can see the nonsense of media, society, governments, big corporations. You are able to see through things. So Okay. usually around the age of 42, जब ये राहु तब राहु. मैच्योरिटी हो, राहु हाँ. मैच्योरिटी प्लस शुक्र की दशा, वेरी डेडली कॉम्बो. तो आप सारे जो है उनको छिन्न भिन्न करते जाते हो. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर वीनस, एंड विल कैच Thank अप. you. जय केतु देव.